کیا آج ہمارے درمیان نیسکو چیف رمضان بٹ صاحب اور ان کا یہاں پہ دیگر افسران ایس سی صاحب اور دیگر افسران جو ہے ان کو میں ویلکم کرتا ہوں لاہور پریس کلب کے پروگرام میٹنگ پریس میں. بٹ صاحب سے بہت ایک درینہ تعلق ہے اور بڑا اچھا خوبصورت. تو یہ ہماری خواہش پہ میں نے جب ان سے ملاقات کی تو ہم نے یہ کہا کہ نیسکو جو چیف ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اس لاہور میں. ظاہر ہے آج کل ایک گرمی کا سیزن ہے اور ایک منٹ کے لیے بھی لائٹ چلی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی لائٹ کو کیا ہو گیا, لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ بٹ صاحب میں اور ان کے عملے میں اتنی کیپیسٹی ہے. ذاتی طور پہ میں انہیں بہت جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان بٹ صاحب نے اپنی کیریئر میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جاندار آدمی ہے, 100% اپ رائٹ آدمی ہے اور لوگوں کے کام کرنے والے ہیں. ہر بندے کے وہ والے لیسکو کی چیز نہیں ہوں گے کہ جو جس فلور پہ آپ چوتھے فلور پہ جا ہی نہیں سکتے, لیکن یہ عوام میں ملتے ہیں. ہر ان کی کوشش ہمیشہ سے یہ رہی ہے جب ویکسین ہوتے تھے ایس سی ہوتے تھے کہ خود لوگوں کو ملے اور میکسیمم جو ان کا مسئلہ حل ہے وہ ہوتے ہیں. بٹ صاحب میں یہ کیپیسٹی ہے الحمدللہ. اس صحافت کے ساتھ ان صحافیوں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے درینہ تعلقات ہیں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج بٹ صاحب یہاں آئے میں بڑی خوشی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریس کلب بھی ان کا ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایک ایسے جس شخص سے تعلق ہے اور وہ ایک شخص بھی وہ جس نے اپنی لائف میں مجھے کسی نے کہا کہ پرسن نماز پڑھ رہے, میں کہ نماز تو نہیں چھڑ دی, اور نماز بھی نہیں چھڑنی تھا جلدی چھڑنا. ہم انہیں جانتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں گے تو بات ہوگی. تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کو احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان پہ اپنا کرم رکھے, چونکہ بڑے اللہ والے آدمی ہیں اور کام والے آدمی ہیں. تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں بٹ صاحب, آج آپ ہماری خواہش ہے ہمارے انویٹیشن پہ یہاں آئے. آپ کی ٹیم کا بہت مشکور ہے, وہاں یہاں بیٹھے ہیں. رابعہ ہماری چھوٹی بہن ہے اور پوری میڈیا ٹیم کا بھی مشکور ہوں. شاہ صاحب یہ فلان ہی ہمارے ہم جب جاتے ہیں تو کوئی کام نہ تو ہم ان کو پکڑتے ہیں, یہ ہمارے اصل وکیل یہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ٹیم بھی ماشاءاللہ میڈیا ٹیم بہت اچھی ہے, آپ کی ساری ٹیم بہت اچھی ہے. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں بٹ صاحب اپنے جو نیسکو کے جو معاملات ہیں شارٹلی سی او بریف کریں گے, اس کے بعد جو چند ایک سوالات ہیں وہ کریں گے. میں دعوت دیتا ہوں نیسکو چیف کو رمضان بٹ صاحب کو کہ وہ اپنا خطاب کریں. شکریہ. جی نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد, میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب ارشد انصاری صاحب کا, آپ کی ٹیم کا, کہ آج آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. آپ نے مہربانی کی, مجھے دعوت دی. اگر آپ دعوت نہ دیتے تو شاید میں خود ریکویسٹ کرتا کہ میں نے آپ کے دفتر آنا اور آپ سے ملنا ہے. آئی ایم پراؤڈ کہ الحمدللہ اس وقت پریس کلب میں آپ کی سربراہی میں, اور بلکہ میں تو جب سے ادھر لیسکو میں آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ پریس کلب کو آپ کے سربراہ آپ ہی ہیں اور آپ کی ٹیم ہی ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کریڈٹ ہے, آپ کے کردار ہے کہ آپ کے صحافی بھائی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے آپ پہ اعتماد کرتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی کیوں اعتماد کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. حالانکہ آج کمپٹیشن کا دور ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جب بھی بات کی, بہترین پرائے میں بات کی, آپ نے جب بھی بات کی سفارش بھی اگر کی تو میرٹ پہ کی. اور جب آپ کو بتایا گیا کہ سر یہ پراپر آپ نے بات کی ہے اور یہ جینون ہے, تو آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا. جب آپ سے یہ بات ہوئی کہ سر اس میں ذرا اس کو ریویو کر لیں, اس میں جینونیس نہیں ہے, تو آپ نے انسٹیڈ آف کے فورس کریں آپ نے اس کو ایڈمٹ کیا. سر یہ آپ کی بہت بڑی بڑائی ہے, میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی سوچ کو.
जहाँ तक लेस्को का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं लेस्को को लीड कर रहा हूँ, मैं कप्तान हूँ लेस्को टीम का। इसमें मेरे इंतहाई कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स और मेहनती मेरी लेबर, और मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लेस्को की जो टीम है ये इंतहाई कॉम्पिटेंट, जफाकश, ईमानदार, दयानतदार और कमिटेड लोगों पे मुश्तमिल है। नो डाउट बिजली एक ऐसी ज़रूरत है कि अगर 24 घंटे में 23 घंटे तक बिजली चलती रहे और 1 घंटे के लिए बिजली बंद हो तो वो 23 घंटे का आराम जो है वो इंसान भूल जाता है, और आधा घंटा या घंटे की इंटरप्शन जो है वो भी बर्दाश्त नहीं होती। ये इंसान की जबिल्लत है। अगर ये जबिल्लत ना होती तो अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना के और साथ ही मनोसलवा अनायत कर दिया था। इसके बावजूद हम नहीं राज़ी हुए थे, हमने ककड़ी और वो मांगा था। तो लेस्को के हवाले से मैं आपको ये बावर कराना चाहूँगा और एश्योरेंस दिलवाना चाहूँगा कि लेस्को कमिटेड है, मेरी टीम कमिटेड है, मैं कमिटेड हूँ कि मैंने अपने मुअज़्ज़ज़ सार्फिन को उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उनकी डिमांड के मुताबिक सर्विस प्रोवाइड करनी है। ये मेरी कमिटमेंट है, और ना सिर्फ मेरी है बल्कि मेरी टीम की कमिटमेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हमारा बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, माशाल्लाह आप चेक कर लें, उनकी प्रोफाइल देख लें, एक से बढ़ के एक, और इंतहाई कॉम्पिटेंट, और पूरी ज़िंदगी कोई ऐसा दब्बा नहीं है। खा वो चेयरमैन साहब की बात करें, खा हमारे ताहिर बशार चीमा साहब हैं, पावर सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है। मैम जोई, हालांकि बेशक उनकी एज इतनी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह इंतहाई कॉम्पिटेंट। और सबसे बढ़ के बात, और इसी तरह से बाकी सेक्रेटरी एनर्जी, जितने भी हमारे बोर्ड के मेंबरान हैं, उनका सबका मुतमा नज़र एक ही है कि हमने पब्लिक को ईज़ करना है, सर्विस प्रोवाइड करनी है, कहीं पे भी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। और यही वजह है कि इस वक्त लेस्को में ना मटेरियल की कमी है, डायरेक्शन बिल्कुल सीधी सादी है, कोई लोड शेडिंग का इशू नहीं है, कहीं पे कोई भी इस तरह से बिजली की बंदिश का इशू नहीं है, कहीं पे मीटर्स की शॉर्टेज नहीं है, मटेरियल बल्क में है। और सबसे बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो लेस्को में सारा का सारा सिस्टम ERP पे शिफ्ट हो गया है, ऑटोमेटेड है सारा का सारा। पूरे लेस्को का एक एप्लीकेंट सॉर्फ, हाँ वो काड़ा में बैठा है या शाहकोट में बैठा है, वहाँ से ही अपने लिए कनेक्शन अप्लाई कर सकता है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, और ऑनलाइन ही उसको डिमांड नोट मिलता है, वो ऑनलाइन ही पेमेंट करता है, और ऑटोमेटिकली वो लेस्को हेडक्वार्टर में जहाँ से मटेरियल इशू होना होता है वहाँ पे उसकी रिक्विजिशन पहुँच जाती है, हमें पता चल जाता है। डेली बेसिस पे मेरी टीम MM में ये बैठे हैं, ये डेली मॉनिटर कर रही होती है कि दी मोमेंट इनके पास रिकॉर्ड आता है कि लेस्को में इतने लोगों ने पेमेंट कर दी, तो उसी वक्त डेली बेसिस पे ये मटेरियल इशू करते हैं, एक पेन स्ट्रोक के साथ बटन प्रेस करते हैं और पूरी लेस्को में मटेरियल इशू हो जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ सिंगल फेज 3 फेज मीटर्स की। जो बड़े कनेक्शंस हैं, क्योंकि उसके पैरामीटर डिफरेंट है, उसके लिए इंडिविजुअल ERP में सिस्टम है, उसके लिए वो करना पड़ता है, और वहाँ भी डिले नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। बाकी रही बात सर्विस की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारे पास टेक्निकल स्टाफ या बाकी स्टाफ की कमी ज़रूर है, लेकिन जितने भी लोग हैं वो कमिटेड हैं, वो समझते हैं कि हमने सर्व करना है, और दे आर सर्विंग। और मैं आपको
یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں سر کہ اس وقت ایک بندہ 3-4 بندوں کا کام بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ خوش ہیں، ہیپی ہیں. اور ہم نے ایک نیا سلوگن جو ہے نا دیا اپنی لیسکو میں، آفیسرز اور لیبر نے مل کے. یہ میرا سلوگن نہیں ہے بلکہ ہماری ٹیم کا سلوگن ہے کہ لیسکو ہماری ماں ہے، اور ہم اس کو اس طرح سے سرو کریں گے جیسے ہم اپنی ماں کو سرو کرتے ہیں. تو انصاری صاحب، میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ کون ایسا انسان ہے جو اپنی ماں کی خدمت نہ کرنا چاہے گا، یا جو یہ چاہے گا کہ میری ماں کو کوئی بد دعا دے یا میری ماں کو کوئی گالم گلوچ کرے. انشاءاللہ العزیز میں اور میری ٹیم کمیٹڈ ہیں کہ ہم انشاءاللہ بہترین سروس دیں گے، اور کہیں پہ بھی ہم ذرا برابر بھی انشاءاللہ اس کو اگنور نہیں کریں گے. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ یقین ہے اور یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. بہت شکریہ. اب بٹ صاحب نے لیسکو میں جو ماشاءاللہ وہ ابھی وہ ہے اتنا عرصہ نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے وہ لیسکو کی واقعی ماں کو تو بندہ ماں کی تو کیئر ہی کر سکتا ہے، اس کی خدمت نہیں کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. بڑے اچھا سلوگن ہے وہ افسران کا ہو یا آپ کے عملے کا ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ بٹ صاحب لیسکو میں ان کی بہت سروسز ہیں، اس لیے ان کے لیے کوئی نیا نہیں ہے لیسکو، یا کوئی اوپر سے آ گیا یا ان کو سمجھ نہیں ہے وہ. تو بلکہ یہ گورنمنٹ کا بڑا اچھا ڈیسیژن ہے، انہوں نے ایسے شخص کا چناؤ کیا کہ جو نیچے سے آئے، لیسکو کی ایک ایک چیز کو جو جانتا ہے. ان کے لیے کوئی نئی بات ہے ہی نہیں. تو وہ الحمدللہ آرام سے جو لوگ باہر سے آ کے کہیں ادھر ادھر سے لگتے ہیں وہ سب پہلے سمجھتے ہیں کہ لیسکو کو 6 مہینے لگتے ہیں، اس وقت تو لیسکو بگڑ ہی جاتی ہے. تو اس شخص کو کیا بتانا جس کو پہلے ہی الحمدللہ سارا حصہ ہے کہ لیسکو کی ہے کیا اور اس میں اللہ کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بٹ صاحب آپ نے بیچ کی بہت اچھی بات کی. اب کوشچن آنسر جو ہے بات آپ شروع کریں. ٹھیک صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ لیسکو کا نظام بڑا اچھا چل رہا ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، وہ کیوں ہو رہی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ سر بجلی چوری اور ریکوری ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہر چیز جو بھی آتا ہے، جو بھی ڈسکوز جتنی بھی ہیں وہاں پہ بڑا ایشو یہی ہے، ریکوری کا اور بجلی چوری کا. لیسکو نے اس بجلی چوری پر کتنا قابو پایا ہے؟ اور ریکوری آپ عوام سے کر رہے ہیں، لیکن وہ سرکاری ادارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں جس میں ہاسپٹلس بھی ہیں، اسکولس بھی ہیں، سرکاری دفاتر بھی ہیں، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہیں، ان کی طرف آپ کیوں نہیں جاتے؟ اربوں روپے کی لسٹیں ہمارے پاس موجود ہیں جو انہوں نے بھی پیسے دے رہے ہیں، ان سے لے اور عوام کو سہولت دیں. ماشاء اللہ، بہت زبردست سوال ہے جی، اور بالکل موقع کی مناسبت سے ہے. میں نے گزارش کی کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، اور آپ نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ ہے. بالکل لوڈ شیڈنگ ہے، اور وہ لوڈ شیڈنگ کہاں پہ ہے، کیوں ہے؟ یہ لوڈ شیڈنگ ان ایریاز میں ہے ایز اے پالیسی جہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے، جہاں پہ زیادہ چوری ہوتی ہے ایز اے پالیسی. وہاں پہ لیسکو میں وہ ایریاز جہاں پہ بجلی چوری ہے یا تھی، وہاں پہ کیٹاگری کے حوالے سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ میکسیمم 4 گھنٹے تک ہے. لیکن وہ بہت پاکٹس ہیں، تھوڑے ایریاز ہیں. میرے پاس 2300 پلس فیڈر ہیں ٹوٹل، اور اس میں جو جن فیڈرز پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس میں 216 فیڈر ہیں، 216 لائنز ہیں جن پہ کسی پہ 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، کسی پہ 2 کی ہے، کسی پہ اور چاند ایک ہے جن پہ 4 گھنٹے کی ہے. لیکن بعض پاکستان کے یا پاور سیکٹر کے بعض ایریاز ایسے بھی ہیں جہاں پہ اس سے بھی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے. لیکن لیسکو میں ایسا ایریا کوئی نہیں جہاں پہ 4 گھنٹے سے زیادہ ہے. ایک تو یہ. اچھا، یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ چونکہ بجلی چوری ہوتی ہے اور ایز اے پالیسی وہاں پہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے. لیکن اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہماری ٹیم کمیٹڈ ہے کہ ہم نے بجلی چوری کو روک دینا ہے، اور ہمیں خاطر خواہ اس میں رزلٹس ملے ہیں. اور وہ ایریاز دڑا دڑ جہاں پہ پاسٹ میں ماضی میں
बिजली चोरी ज़्यादा थी, रिकवरी कम थी, और वहाँ पे 4-4 घंटे की लोड शेडिंग थी, तो वो शिफ्ट हो रहे हैं, कोई 1 घंटे की लोड शेडिंग पे शिफ्ट हो गया, कोई 2 घंटे की लोड शेडिंग पे, कोई 3 पे, बहुत कम रह गया जहाँ पे अभी 4 घंटे हैं। और जो 1 घंटे की लोड शेडिंग थी वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि वहाँ पे बिजली चोरी रुक गई है और रिकवरी बेहतर हो गई है। और बिजली चोरी रोकने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फिर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी टॉप जमात, हुक्मरान जमात को। बिजली चोरी रोकने के लिए हमें प्राइम मिनिस्टर साहब से लेके मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब और पूरी की पूरी मैनेजमेंट बोर्ड हमें फ्री हैंड है कि बिजली चोरी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस है। और लोकल हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वो भी हमारे शाना बिशाना हैं और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान रेंजर, पंजाब पुलिस और एजेंसीज़ जो खुफिया एजेंसीज़ हैं, ये तालमेल के साथ, और हमारी अपनी टीम तालमेल के साथ हम बिजली चोरों के ख़िलाफ़ कैंपेन, एक्सटेंसिव कैंपेन चला रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े बिजली चोर भी और छोटे बिजली चोर भी, गांव की सतह पे घरेलू बिजली चोर भी हमारे काबू में आ रहे हैं। और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े चोर थे, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पकड़ा और पकड़ रहे हैं। तो जब ये बिजली चोरी की खबासत ख़त्म हो जाएगी लेस्को से, तो फिर 100% जो है ना 24 घंटे बिजली मिलेगी। आपने दूसरा सवाल किया कि इस वक्त तलब कितनी है और सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। इस वक्त लेस्को के पास, अभी मैं सुबह जब मैं देख रहा था तो 3300 मेगावाट की डिमांड थी और हमारे पास कोटा 3400 प्लस था। यानी जितनी डिमांड थी लेस्को की, उससे ज़्यादा हमें मेरे पास बिजली मौजूद थी। हम इसी वजह से सॉरी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो रेट कम किया और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को खासकर बेनिफिट मिला है, और उसकी वजह से बड़े कस्टमर जो हैं इंडस्ट्रियल कंज्यूमर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी लेस्को के नेट पे आए हैं। और वो उसके ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाबड़ा के पास या लेस्को के पास शॉर्टेज नहीं है, जितनी हमारी डिमांड है उसके मुताबिक हमें सप्लाई मिल रही है। मेरा ख्याल ये आपके सवाल थी, इसके अलावा कोई चीज़ रहेगी? हाँ, एक आपने ये रिकवरी की बात की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि प्राइवेट कस्टमर्स जो हैं उनसे हम रिकवरी कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि गवर्नमेंट के कोई ऐसे हैं इंस्टीट्यूट्स जहाँ से रिकवरी नहीं आ रही। उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुराने डिस्प्यूट्स जो है वो भी हमने रिकनसाइल कर लिए हैं। और मोहतरम सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी एनर्जी जो पंजाब के हैं, डॉक्टर साहब, उन्होंने बल्कि ज़िम्मा लिया है और वो उन्होंने टेकअप किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से। ज़्यादातर डिफ़ाल्टर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो भी इंशाल्लाह 1-8 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि ये 100% रिकवरी हो जाएगी। गवर्नमेंट के तकरीबन सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं करंट पेमेंट तो दे रहे हैं। ये जो आपके पास लिस्ट पहुंचती है ना, ये पुराने ड्यूज़र्स हैं जिनमें कुछ ऐसे हैं जो तो रिकनसाइल्ड हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी रिकन्सिलिएशन होनी है। और जो रिकनसाइल्ड हैं वो तो इंशाल्लाह ये मई और जून के दौरान ही हमें मिल जाएंगे। और बाकी जो रिकनसाइल्ड नहीं हैं वो भी इसी हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर रिकनसाइल हो जाएंगे और वो भी इंशाल्लाह रिकवरी हो जाएगी। जी 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 मदद सबसे बड़ा इशू लोगों का तारीख का ओवरबिलिंग। क्या आपके दौर में सार्वजनिक ओवरबिलिंग से नहीं होगी, ये बता दें। और क्या ओवरबिलिंग होती है तो उनके खिलाफ कोई एक्शन? जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने मदर भाई। वाक़तन लेस्को के सार्फिन जो है ना ओवरबिलिंग से महरूम हो जाएंगे। ठीक है, ये आप भूल जाएं कि लेस्को में किसी भी सार्फ को 1 यूनिट भी ओवर बिल किया जाएगा, ये मेरी कमिटमेंट है आपके साथ। और बल्कि मैं पिछले दिनों मैंने ये बात की कि उसका अगर कहीं पे ओवर बिलिंग होगी तो उसका जिम्मेवार मैं हूँगा। मैं आज फिर उसको दोहराता हूँ, बिल्कुल हम कमिटेड हैं, किसी भी सार्फ को 1 यूनिट की ओवर बिलिंग नहीं होगी इंशाल्लाह अल अज़ीज़। बल्कि जो अगर थोड़ा बहुत था प्रॉब्लम तो वो भी अप्रैल से लेके ऑनवर्ड, मई, जून, जुलाई, आगे कहीं भी
किसी भी महीने में इंशाल्लाह किसी सार्फ को 1 यूनिट की ओवर बिलिंग नहीं होगी। ये हमारी कमिटमेंट है। शेख साहब क्या ऐसा फैसला किया जा रहा है कि मीटर रीडर की जगह जो है वो शहरी अपने मीटर को रीड करती है? ओ क्या ये दुरुस्त है? अगर ये वाकई ये खबर है और ऐसा फैसला करने जा रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इस फैसले से आपकी जो बिजली चोरी है वो 70% तक जाएगी, क्योंकि जब चेन शुरू होती है बिजली चोरी की वो मीटर रीडर की। जी बिल्कुल। देखें जी, ये बिफोर टाइम है इस पे कमेंट्स करना, चूँकि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो इस प्रोग्राम को लॉन्च करने जा रहे हैं। जो ही उनके पास टाइम हुआ वो इंशाल्लाह इसको लॉन्च करेंगे, और ये स्पेशल प्रोग्राम है अपना मीटर अपनी रीडिंग। और इसके लिए हम लोग डिस्कोस 100% तैयार हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ कंप्लीट करके बैठे हैं, बल्कि एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया पे भी आपको ये चीज़ मिलेगी। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर साहब के पास टाइम होगा और वो इसको लॉन्च करेंगे, ये बिल्कुल लॉन्च करने जा रहे हैं अपना मीटर अपनी रीडिंग। और ये डिजिटल ऐप होगी, हर सार्फ अपना खुद उसकी तस्वीर लेगा मीटर की, और वही रीडिंग जो है वही उसको बिल पे आएगी, उसी तरह से बिलिंग होगी। ये बिल्कुल इसमें हो रहा है जी, 100% हो रहा है। हाफ साहब आप कर, राणा साहब सबसे बड़ा इसके बाद आप कर। ये है कि एक तो जो आप जवाब आपके सवाल में। बहुत सारे सेक्शन जो है वो ऐड कर देते हैं। दूसरा ये है कि बिजली जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा महंगी होती जाती है, ताकि हालांकि जो सूद होता है मार्केट से बिजली ज़्यादा चीज़ ज़्यादा होने में खरीदे उसकी कीमत कम होती है। लेकिन वापस का एक ऐसा सूद है कि बिजली जो ज़्यादा इस्तेमाल करता है उसकी ज़रूरत की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। जी बड़ा खूबसूरत सवाल है जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये सवाल आपका हकीकत पे मबनी है कि जो बहुत थोड़ा इस्तेमाल करते हैं बिजली उनका रेट्स कम है, जो ज़्यादा करते हैं उनका रेट ज़्यादा है। चूँकि ये एक तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो टैरिफ है ये लेस्को डिज़ाइन नहीं करती, इसको अप्रूव नहीं करती, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो इसको अप्रूव करते हैं बाकायदा मिनिस्ट्री से, और इस तरह से कैबिनेट इसको अप्रूव करती है अल्टीमेटली, और नेपरा इसकी जो है ना इसको प्रपोज करती है सारा का सारा। और इसमें जो थोड़े इस्तेमाल करने वाले हैं ना उनको ये स्पेशल उसकी सब्सिडी जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसको उसको पे कर रही होती है, वो सिर्फ और सिर्फ गरीब गुरबा जो गरीब लोग हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए या उनको भी बिजली देने के लिए, ताकि वो बिजली का हक से बुनियादी ज़रूरत से महरूम ना रह जाएं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है। इसलिए वो जो गरीब सारफ हैं जिनकी बहुत कम इस्तेमाल है, झुग्गियों वाले छोटे छोटे गरीब गुरबा, उनका रेट कम है, और जो साहिब हैसियत है उनका रेट ज़्यादा है, और ये टैरिफ वो डिसाइड करती हैं। राणा साहब मतलब अभी आपने बताया कि लोड शेडिंग नहीं है इस वक्त पूरे लेस्को रीजन में, ये हकीकत है, वाकई लोड शेडिंग जो है वो नहीं है। मगर मेडिकल सीजन में लेस्को ने तमाम 6 माह तक जो है वो काम किया, वर्किंग की, और जितने भी इलाके वो लोडेड थे वो ठीक करवाए गए, अपग्रेड किए गए। मगर इस वक्त सूरत ये है कि ट्रांसफार्मर जो है वो रोजाना की बुनियाद पर चल रहे हैं, और एवरेज अगर निकाली जाए तो लेस्को रीजन में 150 तक ट्रांसफार्मर रोजाना चल रहा है सर। सिर्फ कल की अगर बात करूँ तो कल 368 जो है वो परमिट लिए गए ट्रांसफार्मर तब्दीली करने के। तो वो ये सर मेन बात जो है ना वो लोड शेडिंग की ये है। देखो राणा साहब, हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं। अगर हम इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट लें तो वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अनएक्सपेक्टेड हीट वेव थी, मेरा ख्याल है इसके लिए आप भी ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होंगे, और कोई भी ये बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये ऑल ऑफ ए सडन इस तरह की हीट वेव ऑल ऑफ ए सडन आ जाएगी। लेकिन ये अप्रिशिएबल है ऑन द पार्ट ऑफ लेस्को कि जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीट वेव आ गई, और वहाँ पे लामल्ला जो डिज़ाइनिंग हमारी थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वो जो सैंक्शन लोड होता है, जो मेरे वालिदैन ने मेरे जन्म से पहले जो अप्लाई किया था 1 किलोवाट लोड, कि मैंने 1 किलोवाट लेना है, उस वक्त वाक़यातन मेरे घर में कुछ भी नहीं था। क्या था, एक
पंखा, उसके बाद बल्ब चंद एक, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। उसके बाद मैंने ऐड ऑन कर दिया फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इस्त्री, एसी डे बाय डे। लेकिन वो जो मैंने मेरे वाले साहब ने 1 किलोवाट का लोड लिया था, अभी तक भी वही है। लेस्को के पास वही लोड है 1 किलोवाट। अभी मेरे घर में एक की बजाय 10 किलोवाट लोड हो गया, लेकिन ना मैंने उसको एक्सटेंड करवाया और ना ही अपडेट हुआ। लेकिन इसके बावजूद हम एस्टिमेशन करते हैं, जहाँ पे भी जैसे इस दफ़े जो वीकनेसेस हैं, मुझे पता चल गई कि फलां जगह पे ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ओवरलोड है, विदाउट सीइंग कि यहाँ पे लोगों ने अपना लोड सेंक्शन करवाया या नहीं करवाया। इसके बावजूद अगले सीज़न में आपके साथ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगले सीज़न में यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम इसी जो अगले 6 माह है इसके दौरान ये प्लानिंग पूरी कर लेंगे, ताकि दोबारा इस तरह से इन एरियाज़ में प्रॉब्लम ना आए। अगले किसी और में आएगी तो फिर उसमें भी देखेंगे। इसकी वजह ये है लोड ग्रोथ जो है ना अब नॉर्मल हो जाती है। जी जवाहर मलिक साहब आखिरी सर। सवाल। जवाहर साहब आखिरी सवाल। 10 से 12 हज़ार होता था एक समय। जी सर। अब तो देखते हैं 40-40 हज़ार हो गया है, कैसे उन्होंने सामान दे विजिट करें, कैसे पॉसिबल है? बड़ी मेहरबानी। देखो मैं तो समझ रहा था कि आप जो है ना चुपता सवाल करेंगे, लेकिन आप जो है ना मुझे ही सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल। मलिक साहब, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जिस तरह से हमारे मुल्क की सूरत हाल है हर डिपार्टमेंट में और फिनंशियल प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से नो डाउट कि हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी वो 12,000 13,000 सब डिवीजन ऐसे ही था। लेकिन अब आपने तो 40,000 की बात की है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प सूरत डेवलप होगी। जब चेयरमैन टास्क फोर्स वहाँ पे डिस्कशन हो रही थी तो यही शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की, तो जब मैंने उनको बताया कि जी मेरे पास ऐसी सब डिवीजन भी हैं जिनका 72,000 कंज्यूमर हैं, तो वो हैरान। हाँ जी 72,000 कंज्यूमर हैं, आप तो 10-12 हज़ार की बात कर रहे हैं। 72,000। लेकिन होना उसकी बाइफिकेशन होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, हम अगर ये देखें ना, यही तो मैं क्रेडिट लेना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वही टीम जहाँ पे कम अज़ कम 5-6 सब डिवीजन होनी चाहिए, 5-6 एसटीओ होने चाहिए, 5-6 एसटीओ के साथ पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वहाँ पे एक ही और उसके पास भी पूरा एज पर जो उसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो भी उसके पास मुलाजम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ह्यू क्राई नहीं है। आप देख रहे हैं, नो डाउट मैं मानता हूँ, जैसे राना सर ने पॉइंट आउट किया कि हीट वेव थी, ट्रांसफार्मर डैमेज हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कहीं से भी आपको ये तो फीडबैक नहीं आई कि 2 दिन से बिजली बंद है, फलाने दिन से बंद है। जब तक ट्रांसफार्मर डैमेज होता है, जब तक वो सप्लाई 100% कस्टमर्स की बहाल नहीं हो जाती, तब तक ना एसटीओ, ना एक्शन, ना एसी, और ना ये मेरी टीम, इवन ओडी साहब तक, और मैं भी फिर अक्सर बेशतर इंजॉय करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब तक हम आराम सुकून से नहीं बैठते जब तक एक साल की बिजली रिस्टोर नहीं हो जाती। सर सोलर एनर्जी से कंट्रीब्यूट हो रहा है, और ये इसका ट्रेंड क्या है? ये अपवर्ड है, और ये क्या लेस्को के सिस्टम के लिए और लेस्को की जो फाइनेंशियल जो इसकी बैलेंस शीट है उसके लिए आप इसको किस तरह से देखें जी, ये 1300 फरूकी साहब, गुजारिश ये है कि पहले तो मैं इसको अप्रिशिएट इसलिए करना चाहूँगा कि ये ग्रीन एनर्जी है। ये सोलर एनर्जी जो है ना, ये ग्रीन एनर्जी है और ये बेहतरीन एनर्जी है। पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है और हमें भी इसको वेलकम करना चाहिए। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि चूँकि बिजली बेसिक नेसेसिटी है, और बेसिक नेसेसिटी जो है, जैसे मोहतरम ने सवाल किया था तो मैंने बताया कि इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब्सिडी भी देती है। वो इसलिए सब्सिडी देती है कि कम अज़ कम कोई भी बंदा बिजली से महरूम ना रहे। तो नो डाउट जब ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो जो लेस्को का इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर बर्डन तो आएगा, लेकिन चूँकि हम भी कम्पिटिटिव मार्केट की तरफ जा रहे हैं तो इंशाल्लाह स्मार्ट
टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं और कम्पिटिटिव मार्केट ज़रूर होगी और लेस्को कम्पीट करेगी, मार्केट में कम्पीट करेगी इंशाल्लाह अज़ीज़। और वो पॉलिसीज़ जो कम्पिटिटिव मार्केट की पॉलिसीज़ हैं उस पर अमल दरामद करते हुए हम भी इंशाल्लाह पूरे कंपटीशन में होंगे। जौन सा मर्जी आए कंपटीटर सर 1395 मेगावाट बता रहे हैं। 1395 में हाँ जी, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। हमने भी 110 का लगाया। जी जी, और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा है। जी 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 माशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया CEO लेस्को चीफ लाल भट्ट साहब, आपने माशाल्लाह लेस्को की बात की और आपसे बड़े अच्छे सवाल हुए, उसके जवाब आपने दिए। आज ज़ाहिर मीडिया पे जब चीज़ें आएंगी तो लोगों को तसल्ली होगी कि लेस्को जो है वो आइंदा क्या करना चाह रहा है, लोड शेडिंग है नहीं है, और चीज़ें कैसे अच्छी होंगी, रिकवरी क्या है। बहुत अच्छी हुई बात। इंशाल्लाह ताला भट्ट साहब आपसे हमारी टीम का रब्ता तो रहता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वक्तन ऐसी कोई बात होगी तो अब आपको दावत देते रहेंगे। ये प्लेटफॉर्म जो है वो आपका है, ये दफ्तर भी आपका है। इंशाल्लाह ताला जब आप चाहें इंशाल्लाह ये जो मीडिया है वो आपके शामिल होगा। थैंक यू वेरी मच। आई एम ग्रेटफुल। इधर ही Thank you. थैंक यू।